मैम अनम्यूट हो गई है। यस मैम, मैम आप अनम्यूट हो गई। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग Good मैम। afternoon, ma'am. मॉर्निंग मैम। गुड आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून। For the others to enter, and you all is shouting, and you are muted yourself. I was waiting to join. Okay. ओके ओके मैम। Yes. Okay, ma'am. This chapter number 11, that is electric charges at rest. First of all, let me tell you that your portion is respiration in organisms. Chapter number 7. That Chapter 7. written also on your WhatsApp and Snapwork, but you learn chapter respiration. Okay. Okay ma'am. Okay ma'am. Okay ma'am. Okay ma'am. Good afternoon ma'am. Don't say good afternoon, good morning. Now stop it. Let us start the topic. Okay. I am also going to mute you all, and then we Ma'am, which chapter? chapter 11, electric charges at rest. This evening I have done Okay ma'am. also, so we will continue its revision. Respiration I have done. So many days we have continued respiration, chapter revision. So we Yes, have ma'am. Yes ma'am. Yes ma'am. electric charges at rest. So here we have seen the utility of electric current. देखे हैं, लेकिन अभी हम लोग बात कर रहे हैं electric at rest, in which we have studied about charged and uncharged object, and then we have discussed about conductors and insulators. All these points, I think it is clear to all of you. The point clear है, conductors and insulators. मैम आपकी आवाज अच्छे से नहीं आ रही। Yes, ma'am. Conductors and insulators. Conductors and Conductor, those material that allow electricity to pass through them easily. asking you to tell the definition. I am asking you that have you all understood this? Yes ma'am. Yes ma'am. Yes ma'am. Yes ma'am. आप लोग को रिकॉल कर रहे हैं कि आप लोग ये सब टॉपिक पढ़ चुके हो. Kinds of Yes charges, ma'am. Yes ma'am. positive and negative charges, and we have studied that like charges repel each other, and charges attract each other. Attract each other. They are positive and negative. Then charges are produced in pairs. Charges pairs में produce होते हैं. ये भी हम लोग जानते हैं. कैसे बताए थे आपको कि जब एक ऑब्जेक्ट को दूसरे से रब करते हैं, जैसे इबोनाइट और फ्लैनेल को एक दूसरे में रब करेंगे तो चार्ज होगा ही, उसके साथ साथ चार्ज हो रहा है. इसका मतलब क्या हुआ? चार्जेस प्रोड्यूस मैम समझ नहीं आ रहा है। समझ नहीं आ Ma'am, your voice is not coming. Ma'am, your voice is not coming clear. मैम क्लियर नहीं आ रही है आपकी आवाज। मेरा बस नौटंकी जो है, नौटंकी देखने की जरूरत नहीं है। Now here we have studied about earthing. Earthing के बारे में पढ़े हैं कि जब चार्जेस हमारे किसी भी सर्किट में आने के बाद हम अपने मेन स्विच को क्या करते हैं, अर्थ से कनेक्ट करते हैं ताकि जो चार्ज आए. What is the problem there? के घर
से कहीं कोई डिस्टर्बेंस आ रहा है? आप कहीं लूज जगह पर बैठो. Method of charging, we have discussed about that. The charges are of three types. Method of charging is of three types. First is by rubbing or friction, and second is by contact or conduction, and third was electrical induction. These all 3 points is clear to all of you? ये जो method, Yes, ma'am. ये सबको clear है? Ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. तो कुछ पूछना Yes, है? ma'am. मैम ये चैप्टर का मैम क्वेश्चन आंसर हो गया है. आने की जरूरत नहीं है, ये रिवीजन चल रहा है. You don't tell me what is I have done or not. जैसे तुमको मालूम है. I am asking you the methods of charging up. ये रिवीजन चल रहा है. This is the revision class. Yes or no? Yes, ma'am. क्या पूछना है बोलो अदिति. क्या पूछना? मैम वो जो आप ग्लास रॉड के बारे में बता रही थी एक बार फिर से बताइएगा. क्या? मैम कल ग्लास रॉड के बारे में बता रही थी ना आप, वो एक बार फिर से बताइएगा. ग्लास रॉड के बारे में बता. कौन सी टॉपिक में ग्लास रॉड के बारे में बता रहे थे? पेज नंबर 164 पे आओ. ओपन योर बुक. 164 ग्लास रॉड के बारे में यही बता रहे थे कि जब आप थर्मोकोल का बॉल लोगे या पिच बॉल लोगे और उसको हैंग करोगे किसी स्टैंड के मदद से, पहले हम ग्लास रॉड को फ्लैनेल से रब करके और जब उस पिच बॉल के पास लाएंगे तो वो क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा, क्योंकि पिच बॉल के पास दूसरा चार्ज है और ग्लास रॉड के पास दूसरा चार्ज है. अब इसको 10 लेवल पे छोड़ देना है बस. छोड़ना लूप बंद करना. अरे सब लूप उसके बाद क्या हुआ? वो शेयर कर दिया चार्ज को, मतलब ग्लास रॉड से वो चार्ज चला गया किस पे? पिच बॉल पे. अब दोनों में कौन सा चार्ज डेवलप हुआ? दोनों में सेम चार्ज, दैट इज नेगेटिव चार्ज डेवलप. नेगेटिव चार्ज जब डेवलप हो गया तो सिमिलर चार्जेस क्या करता है? एक दूसरे को रिपल्सन होता है. हाँ, रिपल्शन होता है. तो उसके बाद वो रिपल्शन दिखाएगा. ये सेकेंड मेथड है. मेथड ऑफ चार्जिंग बाय कॉन्टैक्ट. फिर चेक कर आ गया है. चेक आज बाद हम करेंगे. तो बाद में कर लो. Okay. Now today we will start with charges in nature. Now children, we often see that there is lightning and thundering. तो सबसे पहले जब thundering और lightning होता है तो आप क्या देखते हो? What do you see? First, lightning देखते हो कि thundering सुनते हो? Lightning. Going on, Guru Prakash, you are telling me that you are question answer has been done and you are playing over there. I will just block your number. You have deteriorated a lot. Guru Prakash, now I can understand who is this boy with a code name. Now here, first of all, in the nature, we see that the lightning, flash of lightning reaches to us much before the sound is seen. Why is it so? Because the speed of light is more than the speed of sound. This is the reason. Now, why does this lightning occur? Lightning or thundering क्यों होता है? Because in the atmosphere, the charges are arranged
one layer is positive, other layer is negative. So this positive layer is here at the nearer end and negative layer is at the farther end. So and the air between these layers, they do not allow these charges to meet. इसके बीच में जो एयर का लेयर है वो एक दूसरे से मिलने नहीं देता है चार्जेस को. तो क्या होता है, जहां पर इसका एयर का लेयर पतला हो जाता है तो वहां पर ये चार्जेस एक दूसरे से टकराते हैं, और जब टकराते हैं तो हमको क्या दिखाई पड़ता है, साउंड और लाइट दिखाई पड़ता है, जस्ट बिकॉज ऑफ द टू चार्जेस कमिंग इन कॉन्टैक्ट विथ ईच अदर. This is charges in nature, and we cannot see these charges. हम लोग ये चार्ज देख पाते हैं क्या? नहीं देख पाते हैं चार्जेस. नेचर में चार्ज आप देखते हो क्या? फ्लोट करते हुए कहीं दिखता है चार्जेस? Say yes or no. No, ma'am. नहीं दिखता. नहीं दिखता है चार्जेस. तो चार्जेस हमको इसलिए नहीं दिखता है कि वो एक एटमॉस्फेरिक कवर से कवर्ड रहता है. दैट आर आवाज मेरा जैसे आप लोग कोम को रब करते हो हेयर पे, तो चार्ज आपको उसमें कोम में दिखता है क्या? It cannot be seen. The charges cannot be seen. It can only be developed, but it cannot be seen. And that is why in the atmosphere also the charges which are created, how these charges are created, that we don't know. But the charges are there in the nature and they are separated. But then you might have a question कि तब हम लोग को हमेशा क्यों नहीं दिखता? इसलिए नहीं दिखता है कि वो सेपरेटेड होता है ब्लैंकेट ऑफ एयर से. एंड एज यू नो, द ब्लैंकेट ऑफ एयर दैट इज सेपरेटिंग दिस लेयर, एयर इज अ पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिक करंट एंड हीट. दोनों का वो पुअर कंडक्टिविटी होता है उसमें, इसलिए वो एक दूसरे को मिलने नहीं देता है. और जहां ये ब्लैंकेट ऑफ एयर कमजोर पड़ जाता है वहां पर चार्जेस क्या होता है, अपने पावर से अट्रैक्टेड हो जाते हैं, और वहां पर ये शो करता है कि फ्लैश ऑफ लाइटनिंग हो रहा है या थंडर स्टॉर्म हो रहा है. ठीक है. अब इसके लिए अगर आप लोग बहुत अभी न्यूज में सुनते होंगे कि कहीं बिजली गिरी, उससे बहुत सारा फसल बर्बाद हुआ, बहुत सारा बिल्डिंग्स डिस्ट्रॉयड हुआ. तो बिजली कैसे गिरती है? बिजली इसी तरह से गिरती है जहां ओपन एरिया है और वो कोई भी एब्जॉर्बिंग एलिमेंट वहां पर नहीं है जो बिजली को एब्जॉर्ब कर सके. तो वो क्या करता है, वो आपको किसी भी ओपन एरिया में फॉल कर जाता है. तो उसके लिए to protect our buildings, to protect the areas where we live, we use lightning conductor. One of the scientists that was named as Benjamin Franklin. नाम के जो साइंटिस्ट थे, वो क्या किए कि एक लाइटनिंग कंडक्टर बनाए, और उस लाइटनिंग कंडक्टर में क्या बनाए कि उसका spikes, it has had a spike-like structure, and that spike-like structure was connected to the whatever charge which is developed in the nature, that is getting transferred into the earth, and it is not to harm your building or monument in which we are living. Whatever building, tall building or multi-storied building, if we are living, then we will not get destroyed. Or that gadgets or equipments, electrical equipments that we are using, that also do not get spoiled. This has got a spike-like structure and it help to reduce the chance of a building up of very large amount of charges on the cloud in its neighborhood. This reduces lightning strike occurring. Here on page number 168. 168 निकालो और आप लोग उसका structure देखो. Yes.
Who wants to ask? क्या पूछना चाह रहे हो? उमंग राज, बताइए, नहीं समझ में आया मैम, फिर से बताइए, नहीं समझ में आया। क्या? मैम बोल रहा है फिर से बताइए, उसको नहीं समझ में आया है। कंडक्टर के बारे में आप पहले पेज 168 खोलो। यस मैम, खोल लिए। रोहित राज, कौन पूछ रहा है? मैम 160 मैम समझ में आ गया मैम, ऐसी मैम जगत ओके ठीक है, जिसको भी नहीं समझ में आया एक बार और सुन लो। इसका स्ट्रक्चर आप देख सकते हो ड्राइंग में जो बना हुआ है। बिल्डिंग के साइड में एक टॉल मेटालिक ये पिलर लगा रहता है और उस पिलर में एक स्पाइक लाइक स्ट्रक्चर होता है, एक स्पाइक की तरह ऊपर में स्ट्रक्चर होता है। वो स्पाइक जो होता है बिल्डिंग से भी टॉल होता है और वो टॉल इसलिए होता है कि जब भी कोई इलेक्ट्रिक ये डिस्चार्ज हो नेचर में तो वो उसको कैप्चर कर सके और कैप्चर करके कहाँ भेजे, वो अर्थ में कनेक्टेड होता है। सो इट इज टू बी सेंड टू द अर्थ, इट इज टू बी ट्रांसफर टू द अर्थ टू मेक स्टेबल। अर्थ में चला जाएगा कोई दिक्कत नहीं होगा, कहीं कोई हैम्पर नहीं होगा, कोई भी चीज का नुकसान नहीं होगा और जिस बिल्डिंग में हम रह रहे हैं वो बिल्डिंग हमारा सेफ होगा। तो ये आपका एक तरह से सेफ्टी डिवाइस है और इसका स्ट्रक्चर जो है वो जानने के लिए द फ्लैट थिक मेटल स्ट्रक्चर ऑफ द लाइटनिंग कंडक्टर प्रोवाइड्स अ सेफ एंड इजी पैसेज टू द flowing electric charges as and when lightning does strike. The lightning charges therefore flow down through it deep down into the earth from damaging effect of lightning. और स्ट्रक्चर क्या हो जाता है हमारा? लाइटनिंग, किसी भी लाइटनिंग तरह का भी लाइटनिंग डिस्चार्ज। अब उसके बाद है के पास एक टॉपिक है सेफ्टी प्रिकॉशन ड्यूरिंग लाइटनिंग। लाइटनिंग के समय में हमें क्या क्या प्रिकॉशन रखना चाहिए? तो पहला है, अगर आप कोई आदमी कोई व्यक्ति आर आउटसाइड द हाउस, घर से अगर ओपन में है तो क्या क्या कर सकते हैं? ऑन ऑब्जर्विंग द साइंस ऑफ लाइटनिंग एंड थंडर go to a safe place immediately. Immediately आपको किसी safe place पे चले जाना चाहिए। A house or a building is a safer place. आप घर में रह सकते हो या किसी घरनुमा जगह में, अगर आप कहीं बाहर निकले हुए हो और लाइटनिंग थंडरिंग हो रहा है तो कहीं सेफ जगह पर आप inside a car. अगर आप बाहर हो और आप कहीं ट्रैवल कर रहे हो तो आप कार के अंदर ही रहो और बस प्रोवाइडेड द विंडोज एंड डोर्स आर शट, डोर्स एंड विंडोज क्लोज होना चाहिए। अवॉइड शेड्स एंड ओपन एरियाज, ओपन एरियाज और शेड्स के तरफ नहीं जाना चाहिए या फिर ट्रीज के तरफ नहीं जाना चाहिए, बिकॉज एट दैट सिचुएशन द होल एनवायरनमेंट गेट अफेक्टेड and trees are taller, so they may capture this lightning and sometimes at that situation when this type of electric discharge is going on in the nature, then there is whole disturbance in the nature में पूरा disturbance है। हो सकता है कभी कभी पेड़ भी उखड़ जाता है क्योंकि heavy wind storm at that time, so we should be away from this type of area. Then come to for a person present inside a house or a building. एक उस तरह के लोगों के लिए क्या प्रिकॉशन है जो घर में रह रहे हैं, तो उनको अवॉइड कांटेक्ट विथ वाटर। उस समय हम लोग को वाटर के कांटेक्ट में नहीं रहना चाहिए। Why we should not be in contact with water? Because water is a good conductor of electricity and these are electrical discharge, so it may affect your water also, so we should not use water at that time. Use electric equipment हम लोग को उस समय नहीं यूज करना चाहिए, like TV, computers and electrical lights can remain.
इलेक्ट्रिकल लाइट से कोई दिक्कत नहीं है, बिकॉज इट इज अंडर द सेफ्टी कवर, वो सब सेफ्टी कवर में होता है, इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन टीवी और कंप्यूटर को हम लोग को शट डाउन करना चाहिए, उस समय बंद कर देना। Do not use corded phone as lightning may strike extended phone lines. It is safe to use cordless or mobile phone. That time, तो corded phone नहीं use करना चाहिए, because that also sometimes works with the electricity. So your mobile or cordless are safe at that time. Now, after this, यहाँ तक सबको समझ में आया? All of you have understood? Yes or no? या खेल रहे हो? 1 or 2 hours? मैम Playing. Please pay attention. So this last topic of this chapter is advantages of lightning. What are the advantages? अब हम लोग अभी तक क्या पढ़े कि लाइटनिंग से हमको नुकसान होता है, लेकिन उसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट है, बहुत यूजफुल भी है। वो क्या करता है, एटमॉस्फेयर के नाइट्रोजन ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करके वो डिसॉल्व कर लेता है वाटर में, तो इट विल हेल्प टू फुलफिल द रिक्वायरमेंट ऑफ नाइट्रोजन इन प्लांट्स। प्लांट्स में नाइट्रोजन रिक्वायरमेंट जो है वो इस मैम प्लीज रिपीट अगेन। रिपीट एडवांटेजेस ऑफ तुम बोलिए। Lightning converts nitrogen into its oxide. वाटर में dissolve मैम एक बार और बोल दीजिए। करप्ट कर रहे हो। अभी खत्म कहाँ किए हैं? तो क्या बीच में? You just sleep and you come, मैम फिर से रिपीट कर दीजिए। I am telling. Lightning converts nitrogen into its nitrogenous compound and it gets dissolved in water. Water में dissolve हो जाता है वो। और water कहाँ से आया? रेन शावर आएगा ना? Watering कब आता है? जब आपका रेन शावर उसके बाद आता है ना? तो रेन शावर में वो नाइट्रोजन का कंपाउंड डिसॉल्व होके नाइट्रोजनस ऑक्साइड बना लेता है, हाइड्रोक्साइड बना लेता है, और वो क्या कर लेता है, प्लांट के लिए बहुत यूजफुल होता है, क्योंकि प्लांट जो है वो एटमॉस्फेयर के नाइट्रोजन को ट्रैप नहीं कर सकता, वो अपने आप से ट्रैप नहीं हो पाता है, तो वो उसको इस डिसॉल्व नाइट्रोजनस कंपाउंड के I am seeing that some of them are talking in between. Shivam and all. You are talking in between and then you will say, ma'am, I have not understood. Then how will you understand? This in the nitrogenous form, the plant is able to absorb the nitrogen from the environment, and this lightning can also result in the formation of a very protective layer of the atmosphere, and that is your ozone. Ozone is a protective layer that we all know. So after the flash of lightning is received, this ozone layer is rebuilt, okay, and from oxygen. And ozone, this we all know from before, but still ozone provides a protective blanket in atmosphere that shields us from harmful ultraviolet radiation of the sun. And that is why to you can say generate or rebuild this ozone layer is very, very important for the protection of the earth from the harmful ultraviolet rays which comes from the sun. So this ultraviolet rays is just absorbing the harmful rays, and only the useful rays are being sent. But as we know that it has been disturbed by certain impurities or pollutants in the environment, so it has to be rebuilt so that we are safe from this ultraviolet radiation.
Now, you children, you should know this also, that why these ultraviolet radiations are harmful. They are harmful because they can cause several severe diseases, skin diseases, eye infection. These all are the very dreadful diseases which are caused due to this hampering of the ozone layer. So, if it is rebuilt by lightning, so lightning is a very important part. A huge flow of charges during lightning also helps the earth to maintain a balance in the total electric charges contained in it. So, this lightning also helps to maintain a balance between the electric charges which are there in the environment. ये इसका beneficial aspect है. ये important इसलिए है क्योंकि ये नेचर के जो नेचुरल फेनोमेनन है उसमें ये मदद करता है, उसको रीबिल्ड करने में मदद करता है. ठीक है. नाउ टिल हियर किसी के पास कोई क्वेश्चन है और जो नहीं समझ में आया आप? मैम चार्जेस इन नेचर. चार्जेस इन नेचर तो हम आप लोग को कल भी बताए थे, नहीं सॉरी एक बार पहले भी बताए थे जब पढ़ा रहे थे, और अभी भी हम आपको बोले हैं. क्या बोले हैं कि चार्जेस कैसे डेवलप होता है, कहाँ से आता है, ये हम लोग को नहीं पता है, अभी तक नहीं पता है, लेकिन चार्जेस होता है, इस बात को ध्यान रखो. और ये जैसे आप लोग किसी 2-3 चीज का लेयर बनाते हो, जैसे मान लो अभी कोई चीज अरेंज करना है, ठीक है, तो अरेंज करना है कलर के हिसाब से. तो आप पहले उसमें क्या करते हो, मान लो 3 कलर है, एक ब्लू कलर है, एक रेड कलर है और एक ग्रीन कलर. तो आप क्या करो, मान लो ब्लू कलर को आप पॉजिटिव चार्ज मान लो, और रेड और ग्रीन बोले तो रेड कलर को आप एयर मान लो और ग्रीन कलर को आप निगेटिव चार्ज मान लो. ठीक है, ये 3 लेयर हो गया. अब तीनों लेयर आपको एक दूसरे के ऊपर अरेंज करना है. ठीक है, तो ये इसी तरह से अरेंज होता है, लेकिन जो रेड कलर है वो आपका ब्लैंकेट ऑफ एयर है. वो ब्लैंकेट ऑफ एयर जो है वो पुअर कंडक्टिविटी, उसमें इलेक्ट्रिक करंट पास करने की क्षमता नहीं होती है, वो पुअर कंडक्टर है. दैट इज अ पुअर कंडक्टर ऑफ एयर. क्या करेगा, ये दोनों चार्जेस को एक दूसरे में मिलने नहीं देगा. ठीक है, अब क्या होगा कि कहीं कहीं, अब ऐसा तो नहीं है कि जिस तरह से हम यहाँ लेयर्स बना रहे हैं मैन्युअली एटमॉस्फेयर में उसी तरह से लेयर्स बना हो, नहीं, ऐसा नहीं होता है, क्योंकि कहीं वाटर वेपर का मात्रा ज्यादा होता है, तो कहीं कंडेंसेशन होता है, तो कहीं इवेपोरेशन का प्रोसेस होता है. तो इस तरह से क्या होता है, दे आर अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड इन द एनवायरनमेंट. ये जो कंटेंट है, ये तो हम आपको एग्जाम्पल के लिए बोले ना कि ब्लू और रेड कलर का, तो ये आपको ये अनइवनली जो डिस्ट्रीब्यूशन है, कहीं पर आपको पॉजिटिव चार्ज ज्यादा होगा, कहीं पर आपको नेगेटिव चार्ज ज्यादा होगा, कहीं पर आपको एयर का जो परसेंटेज है वो कम होगा. अब ये क्या होता है, ये इलेक्ट्रिक जो चार्जेस है वो एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट होना चाहते हैं, लेकिन एयर क्या करता है, उसको सेपरेटेड रखता है. लेकिन इनको कहाँ मौका लगता है, वेयर दे गेट द चांस, दे गेट द चांस इन द that position where the that thin film of air is loose or very weak. वहां पर जहां पर एयर का लेयर जो है कमजोर हो गया, वहां पर इसको चांस मिल जाता है. तो कैसे चांस मिलता है, जैसे ही हवा कमजोर हुआ तो इलेक्ट्रिक जो पॉजिटिव निगेटिव है क्या करेगा, एक दूसरे को अट्रैक्ट करने लगेगा, और अट्रैक्ट करने के क्रम में दोनों स्पार्क फेंकता है. तो दैट स्पार्क इज योर लाइटनिंग. जो स्पार्क उसमें इलेक्ट्रिक करंट का हुआ, दैट स्पार्क कम्स इन द फॉर्म ऑफ लाइटनिंग ऑन द अर्थ, और वही स्पार्क जो है वो लाइटनिंग के फॉर्म में हमारे अर्थ पर आता है. ठीक है, अब समझ में आई बात? Yes, ma'am. बात समझ में आई? तो यही इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज. और जहां पर ये स्पार्क हुआ तो
तो वो हमारा, चूंकि ये जो स्पार्क होता है ये कमजोर स्पार्क नहीं होता है। तुम देखते हो जब वो अर्थ पर आता है इतना डिस्टेंस कवर करने के बाद भी वो क्या करता है, कभी कभी आपको कुछ चीज को जला देगा, कहीं गिरेगा तो कुछ चीज को डिस्ट्रॉय कर देगा। तो इसका मतलब क्या होता है, वो बहुत पावरफुल होता है, इट इज वेरी पावरफुल। सो वी हैव टू मेक आवर सेल्फ सेफ फ्रॉम इट। और उसके लिए हम लोग को क्या मिला साइंटिस्ट के द्वारा, लाइटनिंग कंडक्टर। ठीक है, बात समझ में आई कैसे एक दूसरे से रिलेटेड है? Yes, ma'am. और किसी को कोई क्वेश्चन है? Anybody else who wants to ask anything? Okay, so let us come to this question answer. ऑब्जेक्टिव आप लोग कर लीजिए एक बार रिवीजन इसका, जो नहीं लिखे होगा वो लिख लेगा और जो लिखे हुए हैं वो एक बार देख लो। कल कोई हमसे पूछ रहा था, प्रिंस, आई थिंक प्रिंस फोन किया था कि मैं बुक में ही अपना ऑब्जेक्टिव किए हुआ हूँ, तो बुक में भी आप करेक्टली करो तब इट इज ओके, देन इट्स ओके। ठीक है, देयर आर टू टाइप्स ऑफ चार्जेस इन नेचर, देयर आर टू टाइप्स ऑफ चार्जेस इन नेचर। Like charges repel each other and unlike charges attract each other. Like charges repel each other and unlike charges attract each other. The materials that normally do not get charged on rubbing and allow electric current to flow through them with ease are known as conductors. Lightning and thundering occur together. Spelling आप लोग करेक्ट लिखोगे thundering का, THUNDERING. Thundering. Then after that, the scientist who proved that lightning is electrical in nature was Benjamin Franklin. Benjamin Franklin. BENJAMIN. Benjamin Franklin. FRANKLIN. Right, true or false? The charges acquired by a glass rod and silk cloth it is rubbed are equal and of the same sign. क्या होगा बोलो तो करवा चुके हैं ना आप लोग को ये ट्रू फॉल्स Yes, ना, तो क्या होगा इसका, ट्रू होगा या फॉल्स होगा? ma'am, please repeat question. B का 1. The charges acquired by a glass rod and the silk False. are equal. False. ठीक है. False. During charging by conduction, False. yes, True. yes. True. True. This charge, if we touch it with our hand, क्या होगा? True. Thing is discharge phenomenon. True. We do not need any special device to protect tall buildings and lightning. False. A charged plastic comb is brought near another similarly charged and suspended plastic comb. क्या होगा इसका? Move away from comb B. Move